Hello everyone. Now today we are going to see our next chapter, General IS requirement for design according to IS 456 2000. Now in our design of structure, our next chapter is very most important chapter, General IS requirement for design according to Indian Standard 456 2000. Now before we going to see our next chapter, in our previous video we saw that introduction to IS 456 2000 part B. उस वीडियो में हमने देखा था there are different type of method used like limit state of collapse, limit state of serviceability, then assumption made in the theory of limit state of collapse in a flexure, then after limit state of serviceability, characteristic strength, then characteristic load, design strength, design load, partial safety factor. So partial safety factor for material strength, partial safety factor for loads, grade of concrete, then after we saw grade of steel, then after we saw importance of use of reinforcement in a concrete and stress strain curve for a concrete, and some important definition and related to some example. Now our next chapter, second chapter, General IS requirement for design according to IS 456 2000. Some content included are effective span कैसे हम फाइंड करेंगे, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इफेक्टिव स्पान क्या है, बीम, कॉलम, स्लैब, देन मिनिमम एसेंट्रिसिटी इन कॉलम, कवर टू रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, देन रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्लैब, बीम एंड कॉलम, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार एंड सम शॉर्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव स्पान. तो इफेक्टिव स्पान किसे बोलेंगे? तो इफेक्टिव स्पान कि जो कॉलम और बीम है, ठीक है, कॉलम और जो बीम है तो उसके जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, कॉलम एंड दो कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्पान. एंड क्लियर स्पान किसे बोलेंगे कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, उसकी कॉलम की एक कॉलम की फेस और दूसरे कॉलम की फेस दोनों का बीच के जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे क्लियर स्पान. एंड जो कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्पान. सो इफेक्टिव स्पान बी कैलकुलेटेड एज फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम और अ स्लैब, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ. क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ. क्लियर स्पान क्या है? फेस टू फेस डिस्टेंस. एंड सेकंड, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, विच एवर इज स्मॉलर. जो दो में से जो स्मॉल होगा उसे हम कंसिडर करेंगे इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम और अ स्लैब. ठीक है, आप लोगों को फिगर दी गई है, ठीक है. सो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, एक्सेस क्रॉस सेक्शन बीम का, तो उसमें जो स्मॉल डी है इट इज़ इफेक्टिव डेप्थ. ठीक है, जो ये स्मॉल डी दिया गया है दिस इज़ इफेक्टिव डेप्थ, एंड कैपिटल डी है दिस इज़ ओवरऑल डेप्थ. B is equal to width of beam and T equal to width of the support. So it is for effective span for simply supported beam or a slab. Now for a continuous beam or a slab. So in a continuous beam or a slab, width of support less than 1 divided by 12 multiplied by clear span. तो हम कैसे कंसीडर करेंगे विथ ऑफ सपोर्ट की विथ कैसे कंसीडर करेंगे कि लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 12 क्लियर स्पान. जो क्लियर स्पान है कंटिन्यूस बीम और स्लैब की, उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12, उससे लेस देन होनी चाहिए विथ ऑफ सपोर्ट. सो इफेक्टिव स्पान इज टेकन एज पर अबोव. नाउ विथ ऑफ सपोर्ट greater than 1 divided by 12 greater than clear span, so it is greater than 600 mm. So effective span is taken as under. For n span with 1 n fixed and other continuous, ठीक है, n span for n span with 1 n fixed and another is continuous,
or for intermediate span, effective span is equal to clear span. Now second, for n span with one end free and another continuous, so clear span plus d by 2 and clear span plus 1/2 width of discontinuous support, whichever is small. जो small होगा उसे हम consider करेंगे. So it is for continuous beam and slab. Now third is a cantilever. So effective span LE is equal to length to the face of the support plus 1/2 into d. So if cantilever is the end of continuous beam, effective span is equal to length to center of support. So it is effective span for a simply supported beam or a slab, or a continuous beam or a slab, or cantilever. Now कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन. अब डिफ्लेक्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि सपोज कोई बीम है, स्लैब है, उस पर लोड आएगा, तो लोड की वजह से उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन. तो उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे. सो एज पर IS 456/2000 इंडियन स्टैंडर्ड कोड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. उसके पेज नंबर 37 क्लोज नंबर 23.2 में दिया गया है कि डिफ्लेक्शन शुड बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स. जो फॉलोइंग लिमिट्स है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन शुड बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट्स. इन अ हॉरिजॉन्टल मेंबर मेजर्ड फ्रॉम एस कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, डिफ्लेक्शन लेस देन स्पान डिवाइडेड बाय 250. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर. तो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इट इज़ बीम और स्लैब. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है वो कितना होना चाहिए, लेस देन स्पान डिवाइडेड बाय 250. इन हॉरिजॉन्टल मेंबर after erection of partition and application of finishes, deflection less than span upon 350 or deflection less than 20 mm. So deflection should not exceed the smaller of 2 value. तो आप याद रखो, आप यानी कि आप लोगों को दिया गया जाएगा IS 456/2000. Now the vertical deflection limit may generally be assumed to be satisfied provided that the L by D ratio are not greater than the value obtained below. Now vertical deflection, तो vertical structural member क्या है, it is column. तो column में कैसे हम consider करेंगे, तो it is based on L by D ratio are not greater than the value obtained below. ठीक है, जो L by D ratio है वो जो नीचे given condition दी गई है उसे फुलफिल होना चाहिए. सो फर्स्ट इज स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ स्पान अप टू 10 मीटर. ठीक है, स्पान और इफेक्टिव डेप्थ जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए. फॉर कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 एंड कंटिन्यूस के लिए 26. सेकंड, फॉर अ स्पान अबाउट 10 मीटर द वैल्यू में बी मल्टीप्लाई बाय 10 divided by span meter. Third, depending upon the area and the stress of a steel, for a tension reinforcement the value in A or B shall be modified by multiplying with the modification factor obtained from figure 4 जो आप लोगों ने दिया गया है. ठीक है, IS 456/2000 पेज नंबर 38. Now depending upon the area of compression reinforcement, the value of L by D ratio be further modified by multiplying with the modification factor obtained in figure 5 of IS 456/2000 page number 39. Now for a T beam and L beam, the value of A and B modified as per figure 6 IS 456/2000 page number 39. PT for use in figure 4 and 5 code should be based on equal to BF into D. ठीक है, तो आप लोगों को IS कोड प्रीफर करना पड़ेगा. सब वैल्यू उसमें दी गई है. ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में अवेलेबल होगा. सो IS 456 रिफ़र करो, पढ़ो, और कहाँ कौन से पेज पे क्या वैल्यू दी गई है वो आप लोगों को याद रखना है. नाउ थर्ड इज़ मिनिमम एसेंट्रिसिटी इन कॉलम. ये भी आप लोगों को IS 456/2000 पेज नंबर 42 क्लोज नंबर 25/4 पे दिया गया है. ऑल कॉलम आर डिज़ाइन फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी. ठीक है, कॉलम है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी. सो मिनिमम एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू
unsupported length of column divided by 500 plus lateral dimension divided by 30. So E minimum equal to L by 500 plus D by 30. L and D in mm. ठीक है. So subject to a minimum of 20 mm. So minimum का फॉर्मूला क्या है? L by 500 plus D by 30. Now next, कवर टू रेनफोर्समेंट. कवर कैसे रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे? सो द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कवर टू स्टील रेनफोर्समेंट इज़ टू प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम कोरोजन. ठीक है. रेनफोर्समेंट में कवर क्यों दिया जाएगा? क्यों? देयर इज सम कोरोजन. कोरोजन को रोकने के लिए हमें रेनफोर्स के अंदर कवर प्रोवाइड करेंगे. सो कवर टू रेनफोर्समेंट कैन बी इंडिकेटेड बाय टू वे. ठीक है. टू वे में हम कवर प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट में. तो फर्स्ट इज नॉमिनल कवर, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लियर कवर. एंड सेकंड इफेक्टिव कवर. फर्स्ट इज नॉमिनल कवर एंड सेकंड इफेक्टिव कवर. सो नॉमिनल कवर में क्या होगा? क्लियर कवर में द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कॉन्क्रीट, इट इज कॉल्ड नॉमिनल कवर, क्लियर कवर. सो क्लियर कवर किसे बोलेंगे? द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट जो थिकनेस होगी, ठीक, कहाँ से होगी? द सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट की सरफेस टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कॉन्क्रीट, नियरेस्ट कॉन्क्रीट की जो नियरेस्ट एज होगी, एंड द सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार. ठीक है. तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? नॉमिनल कवर और क्लियर कवर. नाउ इफेक्टिव कवर. सो द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कॉन्क्रीट, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर. थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम कहाँ से? सेंटर ऑफ द नियरेस्ट एज टू द कॉन्क्रीट, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर. सो आप लोगों को फिगर में दिया गया है. ठीक है. डिटेल ऑफ कवर इन अ बीम. ठीक है. यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास बीम है, बीम में यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया गया है. सो दिस इज द इफेक्टिव कवर एंड दिस इज नॉमिनल कवर और अ क्लियर कवर. ठीक है. तो E इज इक्वल टू इफेक्टिव कवर, E डैश इक्वल टू क्लियर कवर, D इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ एंड कैपिटल D इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ. सो इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2. सो E इज इक्वल टू E डैश प्लस डाया बाय 2. सो ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर. तो कैपिटल D इक्वल टू D प्लस E, स्मॉल d प्लस E. सो कैपिटल D कैसे फाइंड करेंगे? इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर. नाउ सम कोड प्रोविजन. सो नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार. ठीक है. नॉमिनल कवर हम प्रोवाइड करेंगे, ये कितना होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन डायमीटर. डायमीटर का जो बार का जो डायमीटर है उसे लेस देन नहीं होना चाहिए जो नॉमिनल कवर आप दोगे. ठीक है. कि सपोज 12 mm का आप बार यूज़ करते हो तो नॉमिनल कवर 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. यानी कि 15-20. नाउ फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मिनिमम नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन दी वैल्यू गिवन इन IS. ठीक है. तो आप लोग IS प्रीफर कर सकते हो, टेबल 16. सो नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट. ठीक है. जो सम एक्सपोजर एंड सम नॉमिनल कवर इन mm. सो फॉर अ माइल्ड स्टील it is not less than 20 mm, moderate steel 30 mm, सीवर के लिए 45 mm, वेरी सीवर के लिए 50 mm एंड एक्सट्रीम के लिए 75 mm. सो फॉर अ मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डाया बार फॉर अ माइल्ड एक्सपोजर द नॉमिनल कवर में बी एक्सपोर्ट रिड्यूस बाय 5 mm. अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कॉन्क्रीट कवर शुड नॉट deviate from the required nominal cover by 10 mm. And for exposure condition, severe and very severe reduction of 5 mm may be made where concrete grade is M20, M35 and above. So this is the some basic IS requirement for design of design of beam, column and slab. The first क्या आएगा? effective span, then after control of deflection, then after minimum eccentricity in column and some
कोड प्रोविज़न, ठीक है, कि कैसे कवर प्रोवाइड करना है, इफ़ेक्टिव कवर क्या है, नॉमिनल कवर क्या है, कॉलम के अंडर मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए. सो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिज़ाइन ऑफ दी स्ट्रक्चर. देन डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे. सो फॉर हॉरिजेंटल मेंबर होगा तो डिफ्लेक्शन लेस देन स्पान डिवाइडेड बाई 250. किस सिचुएशन में होगा, फ्रॉम दी एस कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट. एंड सेकंड, फॉर हॉरिजेंटल मेंबर आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, डिफ्लेक्शन लेस देन स्पान अपॉन 350 or deflection less than 20 mm. And for some effective span, so for simply supported beam or a slab, clear span plus effective depth or center to center of support, whichever same we can use effective span of the beam or slab. So it is very most important